अस्सलाम वालेकुम। आज के क्लास में हम एस्से वालों का उर्दू लैंग्वेज में इंग्लिश पेपर देखेंगे। इससे पहले हम साइकोलॉजी और उर्दू को कंप्लीट से मुकम्मल तौर पर देखे थे। इस वीडियो में हम इंग्लिश भी देखेंगे तो सारा पेपर कंप्लीट से टोटली कंप्लीट होगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। The aspiring musician faced a bigger challenge than most. She was profoundly deaf. An aspiring person is content, ambitious, settled, unmotivated. इसका एस्पिरिंग पर्सन क्या है, इसका मीनिंग ambitious. Option 2 is correct answer. It is not the little girl's fault. Mr. Jones, I think the geography sector was geared a little too quick. Identify the antonym of fault. Fault का antonym क्या है? In the context of the sentence. Antonym is opposite words. Regret, mistake, negligence, merit. फॉल्ट का अपोजिट वर्ड्स क्या है, यानी एंटोनियम क्या है? मेरिट। ऑप्शन 4। ही डैश ए वीज़ा बिकॉज ही हैड बीन इन प्रिजन। आइडेंटिफाई द बेस्ट ऑप्शन दैट फिट्स द ब्लैंक। रिफ्यूज़स, हैड रिफ्यूज्ड, वाज रिफ्यूज्ड, रिफ्यूज्ड। इसमें से सही कौन सा है? वाज रिफ्यूज्ड। He was refused a visa because he had been in a prison. Option 3. Choose the prefix that means self. Inter, auto, self का prefix super, multi, auto. Option 2. Self means auto. To break the ice, Maria started with a joke about her vacation mishaps. Identify the meaning of break the ice. इसका मीनिंग क्या है? break the ice. In this sentence above, to start a conversation in a social setting, to cool down a heated space, to fix a broken object, to freeze a drink. इसमें से सही कौन सा है? To start a conversation in a social setting. Option 1. Choose the meaning of the phrasal verb. Breakdown का phrasal verb क्या है? To make something stronger, to stop working, to start functioning, to build up. phrasal verb का मीनिंग क्या है? To stop working. ब्रेकडाउन का माने क्या है? To stop working. Identify how the word discrepancy should be alphabetized in relation to discretion. Discrepancy should come before discretion. Discrepancy should come after discretion. उसके बाद आएगा, या discrepancy and discretion should be recited together. दोनों एक साथ आएंगे. Discrepancy and discretion are unordered. इसमें से कौन सा है सही? ऑप्शन 1. डिस्क्रेपेंसी शुड कम बिफोर फर्स्ट कौन सा आता है? डिस्क्रिएशन, बाद में डिस्क्रेपेंसी. तो ऑप्शन 1 इज करेक्ट आंसर. आइडेंटिफाई द करेक्टली पंक्चुएटेड सेंटेंस विथ एन एड्रेस. दे लिव एट 123 मेपल स्ट्रीट, लॉस एंजलिस, कैलिफोर्निया. They live at 123 Maple Street, Los Angeles, California. They live at 123 Maple Street, Los Angeles, California. They live at 123 Maple Street, लॉस एंजलिस, कैलिफोर्निया. इसमें से सही कौन सा है? ऑप्शन 4.
स्ट्रीट के बाद कॉमा आया है, बाद में एंगल्स के बाद कॉमा आया, फुल स्टॉप लास्ट में आया। ये सही है ऑप्शन 4। ऑप्शन 2 में भी स्ट्रीट के बाद कॉमा है, लेकिन लॉस एंजलिस के बाद कॉमा नहीं है इसमें। नेक्स्ट, बिसाइड्स बीइंग ए गुड डॉक्टर, शीना इज ए ग्रेट आर्टिस्ट। चूज द करेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द सिंपल सेंटेंस इनटू ए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। सिंपल से कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में चेंज करिए। शीना इज ए गुड डॉक्टर एंड शी इज ए ग्रेट आर्टिस्ट टू। Although Sheena is a good doctor, she is also a great artist. Sheena is a great artist as well as a good doctor. Sheena is not only a good doctor but also a great dancer. इसमें से सही कौन सा है? इसमें से सही है ऑप्शन 4। Sheena is a not only good doctor but also a great dancer भी। Identify the grammatically correct sentence. The salad is a healthier alternate. The salad is a healthier alternative. The salad is a healthy alternate. The salad is a healthier alternative. इसमें से सही कौन सा है? इसमें से सही है ऑप्शन 2। The salad is a healthier alternative. Option 2 is correct answer. Identify the sentence that gives a command. इसमें से command कौन सा है? वेर आर यू गोइंग, आप कहाँ जा रहे हो। फिनिश योर वर्क ऑन टाइम, टाइम पर अपना काम ख़त्म करो। दिस इज़ एन इंटरेस्टिंग बुक, वाओ दैट इज़ इम्प्रेसिव। इसमें से क्या है? कमांड कौन सा है? इसमें से फिनिश योर वर्क ऑन टाइम आकर कमांड है, यानी हुक्म देना, कमांड देना। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ द वर्ड। इसमें से करेक्ट स्पेलिंग कौन सा है? इसमें से कौन सा है यानी करेक्ट स्पेलिंग? रिसीव, RECIEV। ऑप्शन 4 इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन 4 इसमें से सही है। माई फादर सेड टू मी दे आर लेट। चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। इसमें से सही इनडायरेक्ट स्पीच कौन सा है? माई फादर टोल्ड मी दैट दे हैव बीन लेट। माई फादर टोल्ड मी दैट दे वर लेट। My father said to me that they are late. My father said to me that they were late. इसमें से सही कौन सा है? My father told me that they were late. हम लेट हो रहे हैं, ये सही है। The reason why he quit his job is still a mystery. Choose the function of the noun class in the sentence. इसमें से noun class कौन सा है? Subject, predicate, direct object, indirect object. Option 1 subject is a noun class है। One of the following is the term for someone who is an expert in writing by hand. इसमें से कौन सा टर्म सही है जो किसका एक्सपर्ट, राइटिंग बाय हैंड, अपने हाथों से एक्सपर्ट, लिखने के लिए एक्सपर्ट, उसको क्या कहते हैं? किरोग्राफर, चीरियोग्राफर, लेक्सिकोग्राफर, टाइपोग्राफर, मोनोस्क्रिप्टोलॉजिस्ट। ऑप्शन 1 किरोग्राफर इज करेक्ट आंसर। इसका सही आंसर है। इन ए नेगेटिव सेंटेंस द वर्ब डू must the subject. Choose the option that fits the blank. Contradict, agree with, differ from, ignore. Do must means agree with, must agree with the subject. Option 2 is correct answer. Next question, choose the correct example of a declarative sentence. He is preparing for his exams. Do you like sweets? Open the window. What a surprise. इसमें से declarative sentence का example कौन सा है? He is preparing for his exam. He is preparing for his exam. First one is correct answer. Next, the store was having a sale. Dash many customers flocked to take advantage of his discounts. Choose the linker that fits the blank. Nevertheless, hence,
इन कॉन्ट्रेक्स्ट फॉर इंटेंस, इसमें से सही हेंस आकर सही है। द स्टोर वॉज हैविंग ए सेल हेंस मेनी कस्टमर फ्लॉक टू ए टेक एडवांटेज ऑफ दिस डिस्काउंट्स। Select the sentence where the definite article in used before the names of musical instruments. डेफिनेट आर्टिकल का यूज़ इसमें से किस में यूज़ होता है? राजू इज़ ए गिटार प्लेयर। तबला वॉज इन्वेंटेड इन नॉर्थ इंडिया। शी थॉट हर सेल्फ टू प्ले वीणा। ही प्लेस द पियानो। इसमें से ऑप्शन 4 इज करेक्ट आंसर। ही प्लेस द वायोलिन। पियानो नहीं वायोलिन। तो ऑप्शन 4 इसका सही आंसर है। डैश यू हेल्प मी विद दिस प्रॉब्लम। चूज द मॉडल वर्ब टू शो ए रिक्वेस्ट। कुड, विल, माइट, मस्ट। कुड यू हेल्प मी विद दिस प्रॉब्लम? क्या आप मुझे ये प्रॉब्लम सॉल्व करने में हेल्प कर सकते हैं? विल यू हेल्प मी विद दिस प्रॉब्लम? माइट यू हेल्प मी विद दिस प्रॉब्लम? मस्ट यू हेल्प मी विद दिस प्रॉब्लम? इसका सही आंसर है ऑप्शन 1 कुड। कुड यू हेल्प मी विद दिस प्रॉब्लम? नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द सेंटेंस दैट करेक्टली यूजेस सिंस एज ए सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। आई हैवंट सीन हिम सिंस लास्ट ईयर। शी हैज़ बीन हैप्पी सिंस शी गॉट हर न्यू जॉब। इट वॉज रेनिंग सो वी स्टेड इंडोर्स सिंस yesterday. ही विल वेट सिंस मॉर्निंग। इसमें से सही कौन सा है? शी वॉज बीन हैप्पी सिंस शी गॉट हर न्यू जॉब। ऑप्शन 2 इज करेक्ट आंसर। चूज द सेंटेंस विद द करेक्ट यूजेस ऑफ करेक्ट कोरिलेटिव कंजंक्शन पेयर नॉट ओनली बट आल्सो। He is not only tall and also strong. Not only he like music but also dancing. She is not only intelligent but also kind. Not only the cake delicious but also sweet. इसमें से सही कौन सा है? सही जुमला She is not only intelligent but also kind. Option 3 is correct answer. When preparing a notice, you should use notice prepare करते वक्त किसका इस्तेमाल करते हैं? To ensure the content is easy to read and understand. सही से पढ़ने के लिए और समझने के लिए. Choose the option that fits the blank. Complex language and jargon. Bullet points are numbered list. A small font size, various colors and fonts. किसका बुलेट्स पॉइंट्स एंड नंबर्ड लिस्ट को इसमें नोटिस प्रिपेयर करते वक्त यूज़ करते हैं, इस्तेमाल करते हैं. द प्राइमरी पर्पस ऑफ राइटिंग ए शॉर्ट पोएम इज टू टेल ए लॉन्ग डिटेल्ड स्टोरी, टू एक्सप्रेस थॉट्स और फीलिंग्स कॉन्शियसली, टू क्रिएट कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर्स, टू प्रोवाइड हिस्टोरिकल कंटेंट. यानी प्राइमरी पर्पस शॉर्ट पोएम के लिए क्या है? To express thoughts or feelings consciously. Option 2 is correct answer. One of the following is not a rule for forming the present perfect continuous tense. इसमें से present perfect continuous tense का एक रूल नहीं है. Identify it. उसको शनाख्त करें. Use have or has as the auxiliary verb. Use been after the auxiliary verb. Use the present participle from the main verb. Add ed to the base form of the verb. इसमें से कौन सा है उसका रूल? Add ed to the base form of the verb. Option 4 is correct answer. Identify the structure of a positive sentence in the present perfect tense. यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पॉजिटिव स्ट्रक्चर कैसा होगा? सब्जेक्ट प्लस हैव और हैज़ प्लस पास्ट पार्टिसिपल प्लस रेस्ट ऑफ द सेंटेंस. सब्जेक्ट प्लस वाज आर वर प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस रेस्ट ऑफ द सेंटेंस. सब्जेक्ट प्लस विल प्लस बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस रेस्ट ऑफ द सेंटेंस. सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस रेस्ट ऑफ द सेंटेंस. इसमें से कौन सा सही है? 1 सब्जेक्ट प्लस हैव और हैज़
plus participle of rest of the sentence. 1. They are dash renovating their house. Shows the preposition that fits the blank in the process of, in front of, in light of, in back of. इसका आंसर है इन प्रोसेस ऑफ. ऑप्शन 1 इज करेक्ट आंसर. I am writing dash your recent inquiry. Choose the option that can be used to filling the blank. In case of, in exchange for, in regard to, in process of. इसमें से सही in regard to. I am writing in regard to your recent inquiry. Read the following passages and correct the question. यानी इस पैसेज पढ़ के आइडेंटिफाई द स्टेटमेंट. इसका स्टेटमेंट जो भी होगा उसको डिस्क्राइब करना है. जेंडर इन इक्वालिटी इन ए प्रेसिंग कंसर्न इन इंडिया अफेक्टिंग वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ फ्रॉम एजुकेशन टू एम्प्लॉयमेंट. एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट दोनों के लिए. वुमेन एंड गर्ल्स ऑफन फ्री डिस्क्रिमिनेशन एंड वायोलेंस फेस. Sorry, women and girls also often this discrimination and violence. गर्ल्स को वुमेन्स को इसका फेस करना पड़ता है. impacting their opportunities and well-being. Initiatives to promote gender equality and empower women are in place, but cultural and systematic barriers continue to hinder progress. Identify the statement that best describe the impact of gender inequality in India. It only affects educational opportunities. सिर्फ एजुकेशन के रिलेटेड है, अफेक्ट्स है. impacts both education and employment दोनों के लिए. it is only related to health care के लिए है ये. it is a concern only for men के लिए है. इसमें सही आंसर क्या है? इट इज़ इम्पैक्ट्स बोथ एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट दोनों के लिए भी है. सेम वही पैसेज यहीं पर भी है, फिर भी एक बार पढ़ेंगे. जेंडर इनइक्वालिटी इज़ ए प्रेसिंग कंसर्न इन इंडिया अफेक्टिंग वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ फ्रॉम एजुकेशन टू एम्प्लॉयमेंट. वुमेन एंड गर्ल्स ऑफन face discrimination and violence, impacting their opportunities and well-being. Initiatives to promote gender equality and improve women in a place, but cultural and systematic barriers continue to hinder progress. Cultural and systematic barriers continue to dash progress toward gender equality. इसका क्या है? accelerate, ignore, promote, hinder. ऑप्शन 4 इज करेक्ट आंसर. क्या है इसका सही आंसर? है ऑप्शन 4 है. हाइंडर आकर इसका सही आंसर है. तो ये रहे इंग्लिश का पेपर एस्से वालों का जो मॉर्निंग सेक्शन में हुआ था 3 तारीख को. अभी तक साइकोलॉजी हो गया हमारा, उसके बाद उर्दू हो गया कंप्लीट से, अभी इंग्लिश भी हो गया. तो मुकम्मल तौर पर पेपर एस्से वालों का कंप्लीट हुआ. वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें और एक प्यारा सा कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें.